Okay, so let's quickly look at the homework first. So we basically seen yesterday that there are three types of account: personal account and then impersonal account. Personal account is divided, sorry, impersonal account is divided into two parts: real account and nominal account. So what is personal account? Personal account will include any natural person like human beings like us. Artificial person account means and person which is created by law. Okay. So now no, it's not only in accounting that this is the concept of an artificial person, but even in income tax or in any law, this is the concept. Like a person will include an artificial person created by law. Otherwise, we will not be able to pursue anybody. We will not be able to track any records with the companies or the firms or the banks, hospitals, which with whom we deal. So artificial person will include any company, any platforms, clubs, hospital, hotels, right, banks, which are created by law. On the piece of paper they are created and they can be only dissolved through the piece of paper. They can be only closed down, shut down only on the piece of paper. So this is about an personal account. We have kept pending right now a representative personal account for the time being. What next? Impersonal accounts. Impersonal account, first one is the real account. Okay, that we can see, touch, feel, and which can be measured in terms of money will be called as a real account. There are further two types. One is now we have already seen a difference between revenue expenditure and capital expenditure. So revenue expenditure is the one which is recurring in nature, बार बार होने वाला खर्चा. So it may be daily basis, कम से कम साल में भी एक बार करना पड़े. That will be an recurring expenditure. But here real accounts are mostly related to an capital expenditure. So if you have to buy like once in a lifetime or after 3-4 years, that will be counted into an capital expenditure, tangible account, tangible real account. Why tangible? Because it can be seen and touched. That is called as a tangible. Intangible, which cannot be seen, which cannot be touched probably, but which can be felt. दिखाई नहीं देगा, टच नहीं कर सकते, but if it is not there, then we even may not be able to generate revenue. Okay, revenue generation कहाँ से होता है? जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली चीजें कंपनी में लाओगे, मशीनरी लाओगे, तो उससे प्रोड्यूस करोगे और उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा. If you do not buy this kind of assets, sometimes the companies which are corely dealing having an intangible assets, intangible real accounts, I would say, if they are not there, they will not be able to generate any kind of revenue. For example, if I take a franchisee of McDonald's, right? If I do not take a franchisee of McDonald's, I cannot produce the same goods like a McDonald's produce. Okay, तो मुझे अगर McDonald's जैसा टेस्ट नहीं आया, franchise is nothing but and patent that you are taking from them. कि मैंने अगर मुझे फ्रेंचाइज मैकडोनल्ड का आउटलेट ओपन करना है, तो मुझे मैकडोनल्ड से उनका पेटेंट लेना है कि आप कैसे बनाते हो, वो पेटेंट हमें भी दे दो, राइट. And then only my test of the food will be same like हम कोई भी लोकेशन के मैकडोनल्ड में गए तो हर जगह पे टेस्ट सेम ही है. ऐसा नहीं कि चिंचवड़ का बर्गर अलग लगेगा देन पुणे का बर्गर. तो हर जगह पे टेस्ट सेम ही है. क्यों? क्योंकि उनके पास पेटेंट है, उसका बनाने का फॉर्मूला है, सेम तरीके का मटेरियल यूज होगा, सेम तरीके की मशीनरीज यूज होगी, सेम तरीके का मिक्सचर बनेगा. एंड दैट्स व्हाट दे हैव इन पेटेंट. नाउ विदाउट दिस पेटेंट, McDonald cannot produce, cannot do any kind of sell. We will prefer to have a McDonald test than any other normal जो बाकी नॉर्मल शॉप्स में हमें मिलता है फूड, उसकी जगह पे हम मैकडोनल्ड को प्रेफर करते हैं, because it have a patent, it have a test, correct? So there will be few assets in your company which you cannot see directly, but without them you cannot generate any revenue. So all the software IT companies cannot be seen, but without software, can they do any work? No, they do not have these tangible assets. So that is called as an intangible assets. So there we saw software, goodwill is a reputation of the business in the eyes of the people,
this can be, accounting has provided a way to measure it, way to calculate the goodwill. Okay, what is copyright? A copyright is a right that you cannot copy someone else's content, may it be the story, may it be the poem, may it be the literature, may it be the formulas, may it be the voice. As I said, Amitabh Bachchan has taken his copyright for his voice. So उनके जैसा voice कोई copy नहीं कर सकता. Then trademarks isn't the way the name of any brand, any company is been written. अगर आपने ट्रेडमार्क का राइट लिया है तो कोई आपका नाम वैसे के वैसे कॉपी नहीं करेगा. बिकॉज सी अगेन कुछ चीजें हम ब्लाइंडली लेते हैं बिकॉज दे हैव एन ब्रांड नेम, दे हैव एन ट्रेडमार्क. ओके, सो few times will not accept those things if that trademark will not be there. So intangible assets are same like are also an real account, only there. Then in the impersonal account, the third type is a nominal account. Now what happens in a nominal account? There are further two. Now nominal किसे कहे? For the namesake, anything that we cannot exactly identify it physically, but उसे कुछ तो नाम देना चाहिए हमें करके हमने उसे नाम दिया. For example, when I'm paying a salary, when an employer company is paying a salary to the employee, अब जो सैलरी दे रहे हैं कैश दिखाई देती है. हमने कहा कैश दिखाई देती है, कैश को टच कर सकते हैं, सब कुछ कैश मेजर्ड इन मनी, करेंसी है कैश खुद ही. तो कैश एक रियल अकाउंट है. तो कैश दिखाई देती है, कैश एक रियल अकाउंट है. पर कैश क्यों दे रहे हैं? क्या रेंट करके कैश दे रहे हैं कि कोई ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए कैश दे रहे हैं या सैलरी के लिए दे रहे हैं? तो हमने उस खर्चे को, हमने उस पेमेंट को एक नाम दे दिया. वो जो कैश पेमेंट कर रहे हैं उसे हमने एक नाम दे दिया. ये हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, ये हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं. तो एक नॉमेनक्लेचर हमने यूज किया, एंड दैट्स व्हाट अ नॉमिनल अकाउंट विल हैव वन नॉमेनक्लेचर दैट इज यूज्ड to express that expense or that income. So take it anything from this: rent, salary, traveling, canteen expenses, electricity expenses, all revenue expenses and nominal account expenses. Whereas all the incomes will stand like an interest received. So again, when I receive the interest, I receive the cash. Cash is real account. But क्या asset? Interest दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता. So हमने एक नॉमेनक्लेचर दे दिया. जो कैश हमें मिल रही है उसे हमने एक नाम दे दिया कि ये मेरा इंटरेस्ट का इनकम है, ये मेरा कमीशन का इनकम है. So that nomenclature we have used. So that will fall under an revenue account income. So personal account, real account fall into two categories: tangible, intangible. Nominal account fall into two categories: expenses and income. So most of the capital expenses will fall into real accounts. Most of the revenue expenses and income will fall under nominal account. Okay. So coming back to the homework, office equipment account. Now what is office equipment? Yes, what can be there into the office equipment? Tangible account, real account. Tangible account, real account. So office equipment यानी आपके ऑफिस में छोटे छोटे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, some machines होती हैं, sometimes even computers fall into an office equipment. So ऐसी कुछ चीजें रखती है, that would be under here. Now can we see the office equipment? Yes, we can see them, touch them, feel them. So it's a real account. Wages. Now wages is nothing but a salary paid to the workers. Okay. जो डायरेक्ट फैक्ट्री में काम करते हैं उन वर्कर्स को जो सैलरी दिया जाता है उसे वेजेस कहते हैं. एंड जनरली सैलरी वर्ड इज यूज्ड व्हेन अ सैलरी इज पेड टू द कॉर्पोरेट पीपल. कॉर्पोरेट में इनडायरेक्ट मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, नॉट इनटू द फैक्ट्री एरिया, उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसे सैलरी कहते हैं. तो अब बताओ ये कौन सा अकाउंट हुआ? let me keep this open so you will be able to identify it. ऊपर का चार्ट में ओपन रखती हूँ. देखो अब दिखाई दे रहा है. yes, It is revenue expense. what is the wages is an expense? करेक्ट. क्योंकि हम wages जब देंगे कैश दिखाई देगी, पर क्या सैलरी एसेट दिखाई देती है? नहीं. तो हमने उसको एक नॉमेनक्लेचर दे दिया. अगर ये समझ में नहीं आता है तो क्या आपको वेजेस सैलरी हर महीने देना पड़ेगा? यस, हर महीने देना पड़ेगा. तो क्या बन जाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस बन जाएगा. ओके.
So next one is, this is a nominal account. Reliance company account. सोचो अभी कंपनी का नाम आया है. Name of the what? Natural person? Is it a natural person? Name of the company? Is it a natural person? No, ma'am. It's artificial. An artificial person. Reliance company is different from Tata company. So this is again a which account? Personal account. Okay. Next, dividend receipt. Now dividend होता क्या है? पता है क्या? Dividend क्या होता है? Yes, do you know what is dividend? नहीं ना, पहली बार सुना होगा ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए. What is dividend? By chance anybody know, have a knowledge about stock market, share market, shares, anything? No idea? No, Yes. I'm not sure about that. या बोलो, जो भी पता है बोलो. मैम वो हमें मिलते हैं ना शेयर्स पर डिविडेंड. करेक्ट, एग्जैक्टली. जैसे हम कोई फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट क्यों बनाते हैं हम लोग? हमारे पेरेंट्स फिक्स डिपॉजिट क्यों बनाते हैं? क्या मिलता है उनको उसके ऊपर? इंटरेस्ट मिलता है. करेक्ट. अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स थे, मुझे फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालना था, तो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया. शेयर्स यानी कंपनी का जो एक कैपिटल होता है, वो एक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसे शेयर कहते हैं. ओके. तो जो बड़ी कंपनी होती है उसमें कोई 1 या 2% पैसे नहीं लगा सकते इसमें. वी सॉ दैट इन द बैलेंस शीट, द लायबिलिटी साइड, व्हाट वी हैव इज अ कैपिटल. कैपिटल यानी क्या? जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट होते हैं उसे कैपिटल कहते हैं. अगर इनको 50 करोड़ की जरूरत है, अब ऐसा कोई भी एक बंदा नहीं है इनके पास, एक भी फाउंडर नहीं है कि जिसके पास एक साथ 50 करोड़ रुपए होंगे. तो व्हाट दे डू इज, दे गो टू द पब्लिक. ओके, दे गो टू द पब्लिक विद अ पीस ऑफ पेपर, और ये कहते हैं कि ये हमारे कंपनी का शेयर है, आप एक शेयर ले लो, और एक शेयर हमारा 10 रुपए में है, एक शेयर हमारा 100 रुपए में है, हमें वो पैसे दे दो, क्योंकि हम इस पैसे के साथ बिजनेस करेंगे, और हमें जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें का हिस्सा हम आपको देंगे, जिसे डिविडेंड कहा जाएगा. सो कंपनी जितना भी उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, 50 करोड़ की मान लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करती है, और हर एक शेयर की एक वैल्यू होगी. तो अगर मुझे कोई कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो मैं उसके स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स ले सकती हूँ. इन शॉर्ट, मैं उस कंपनी की ओनर बन जाती हूँ. बट एक्चुअली आई डोंट हैव टू गो देयर एंड वर्क और डू एनीथिंग. कंपनी एक मैनेजमेंट अपॉइंट करती है जो कि डे टू डे बिजनेस को वहां पे देखती है, एंड देन वॉट एवर प्रॉफिट दे मेक, दे ट्रांसफर मी सम प्रॉफिट, बिकॉज मैंने उनको पैसे दिए, मैंने उन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, इसलिए उनको कैपिटल मिला, और उस कैपिटल के ऊपर मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है? प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है मुझे, जिसे डिविडेंड कहा जाता है. ओके. नाउ इफ आई इन्वेस्ट एंड आई गेट अ डिविडेंड, नाउ डिविडेंड आइदर मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा या मुझे कैश में मिलेगा. तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? क्या ये कोई पर्सनल अकाउंट है क्या डिविडेंड? ऐसे सोचो, नहीं है, इसमें किसी का नाम नहीं है, राइट. क्या ये इम्पर्सनल अकाउंट है क्या? अब जो डिविडेंड मुझे कैश में मिला, तो कैश दिखाई देगी, पर क्या डिविडेंड एज सच दिखाई देता है? कैन वी सी द डिविडेंड एज सच? नो मैम. व्हाट इट विल बी? क्या रहेगी फिर ये? नॉमिनल अकाउंट. करेक्ट. अगर इस साल डिविडेंड मिला ना, कंपनी डिक्लेयर्स द डिविडेंड, मे बी क्वार्टरली भी देती है, कोई साल में 2 बार भी देती है, हाफ ईयरली भी देती है, तो वापस ये क्या हो गया? इनकम रेवेन्यू इन नेचर हो गया. इंटरेस्ट, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कैसे मिलता है हमें? क्वार्टरली मिलता है, या कभी कभार साल में भी मिलता है. तो इट्स रिकरिंग इन नेचर, सो इट विल बिकम एन नॉमिनल अकाउंट. ये मेरे लिए इनकम, एक छोटा सा इनकम है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिला, इट्स माय इनकम. ओके. So it will be a nominal account. Goods. Now we said, what is goods? Yes, definition of goods. Tangible real account. Tangible real account. Yeah. The definition क्या है goods की? Yes, Suryo. What is definition of goods? काय कशाला म्हणणार आपण goods? कन्सेप्ट डोक्यात क्लिअर पाहिजे.
What is goods? क्या कहा था मैंने? हेलो, आवाज आ रहा मैम है? हाँ, ये आवाज आ रहा है, बोलो बोलो। वो जिसमें से हम फाइनल प्रोडक्ट बिजनेस के लिए डील करते हैं, मतलब उसकी ऐसी बिजनेस कमोडिटी, के लिए डील करते हैं वो प्रोडक्ट। करेक्ट, ऐसी कमोडिटी या ऐसी चीज जिसमें हम डील करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, राइट। यानी हम परचेज करेंगे, पैकिंग करेंगे या रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करके एक फिनिश गुड्स बनाएंगे, करेक्ट। इस कमोडिटी को गुड्स कहना है, या पूजा, करेक्ट। कल किसी ने मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई थी जो आपकी बुक में है गुड्स की, हु रिमेम्बर दैट? कमोडिटी मैम और yes, मैम commodity or things or articles in which a trader trades. correct, a commodity or an article in which a trader trades. तो क्या गुड्स दिखाई देते हैं? Yes, we can see the goods, we can touch them, Yes, measured in ma'am. money. तो क्या बन जाएगा गुड्स? रियल अकाउंट, ओके, इट विल बी एन रियल अकाउंट। नेक्स्ट, मिस्टर सुरेश, what is the answer? Mr. सुरेश, very clear, very easy, क्या है? पर्सनल Personal अकाउंट, account. नेम ऑफ द पर्सन इज अ पर्सनल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट, HDFC बैंक, हाउ डू आई आइडेंटिफाई द बैंक? Ma'am, it's artificial personal account. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ओके। सो ये ना अंदर का बाइफिकेशन सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए है, हाँ? ये हमें कहीं पे ऐसे एज सच डायरेक्टली काम नहीं आने वाला, बट आपको बस पता होना है, यू शुड ओनली नो कि पर्सनल अकाउंट विल इंक्लूड समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है जहाँ पे क्लैरिटी लगेगी, बट अदरवाइज सिर्फ पर्सनल अकाउंट लिखा तो भी एग्जाम में इट्स मोर देन इनफ। So HDFC Bank is again a personal account. It's an artificial person created by law. Tools. What do you mean by tools? In a factory, they on the factory area, they sometimes need a screwdriver to tighten the things. They need a hammer to push the things. So ये सारे क्या हो गए? छोटे मोटे, क्या कहेंगे हम इन्हें? Tools. They are not big plant and machinery as such, but they are small things which are used. So we will call them as in tools. Now think of personal account to है नहीं. Will it be a real account or will it be a nominal account? Ma'am, it can be real account. It can be real We can account. see. We can see them, touch them, feel them, correct? और ये बहुत दिनों तक भी चलते हैं। हमारे घर पे भी कितने सालों से लाया हुआ एक ही हैमर होगा, probably we don't even change those, right? जब टूटते तो है नहीं है, साल में 2-3 बार लगते हैं हमें, तो बहुत पुराने भी होते हैं। So they are like in capital expenditure, even though their value is less, they are in capital expenditure. So again, tools are a real account, tangible real account. We can see, touch, feel, measuring money. Software, देखो सॉफ्टवेयर कहाँ दिखा था, कहाँ? Yes, It's intangible. intangible real account, you can't see, touch, ओके। तो आपको लगेगा कि इसको नॉमेनक्लेचर दे दिया सॉफ्टवेयर का, बट सोचो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है? इसको कोई नाम नहीं दिया गया, वो एक्चुअली वहां पे है। सीडी में वो बाइनरी लैंग्वेज है जिसमें सॉफ्टवेयर स्टोर्ड है, वो खाली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बट वो वहां पे है, इट कैन बी फेल्ट, राइट? सो इट्स एन रियल अकाउंट, intangible real account. Loan from SBI बैंक अकाउंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर मैं कहूँ कि मेरा एक लोन जो है वो SBI बैंक से और दूसरा लोन जो है वो मेरा ICICI बैंक से है, तो मैंने इसको कैसे बाइफरकेट किया? किस चीज की वजह से मैंने बाइफरकेट किया इसको? नाम से बाइफरकेट किया, राइट? So मेरा loan account in SBI bank and मेरा loan account in ICICI bank, these two things are different. So it's a personal account. We are able to identify it with their name, correct? So it's a personal account. Okay. Last one, rent expenses. What is this? Yes, Pooja, Bhagyashree. Nominal account. May I not confirm.
बोलो अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई, where you got stuck? And this important rule of accounting is called as the 3 golden rules of accounting. Okay. So what are these 3 golden rules of accounting? Now this rule decides which account has to be debited and which account has to be credited. So what is our first step in bookkeeping? Yes, what is our first step in bookkeeping? काय पहिली स्टेप प्रायमरी बुक कुठली आहे बुककीपिंगची? Recording of transaction. Recording of transaction in what format? कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये करायचं आपल्याला रेकॉर्डिंग? जर्नल एंट्री फॉर्मॅट, राईट? पहिली कुठल्या बुक मध्ये आपण एंट्री करतो, ट्रान्झॅक्शन झालं, फर्स्ट वी record it in the books of the accounts in a journal entry format. For that what we need? The date of the transaction, particulars, we need a name of the account that we need to debit and credit. So just now we understood what can be the accounts, right? A transaction, what are the important accounts in a given transaction, that slowly we will be able to identify it. Now once we know the account, we also know their type, if it is a real, personal or nominal. So based on what type of account is, a rule is applied whether that account has to be debited or it has to be credited. So let's take an example that when we said a proprietor started a business with cash rupees 50,000. Okay, the same example, yeah, Mr. Ramesh started business with cash rupees 50,000. Now here we identify 2 accounts, one is cash account, one is Ramesh capital account. करेक्ट, इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन से 2 की अकाउंट्स हो सकते हैं, तो वो एक है रमेश कैपिटल अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट, बिकॉज द बिजनेस गॉट द कैश एंड दिस कैश इज गिवन टू द बिजनेस बाय मिस्टर रमेश. तो ये 2 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किए. देन वी सेड ओके कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड मिस्टर रमेश इज एन पर्सनल अकाउंट. अब इन दोनों में से अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है तो कौन से अकाउंट को मैं डेबिट दूं और कौन से अकाउंट को मैं क्रेडिट दूं? That depends upon these 3 golden rules of an accounting. So first rule is, let's talk about a real account rule. Okay, अगर कोई अकाउंट अगर रियल अकाउंट है तो उसे डेबिट कब करना है? रियल अकाउंट डेबिट when comes in and रियल अकाउंट को क्रेडिट करो when it goes out. Okay, so credit the real account when the account that you have identified, that thing is coming into the business. Then at that point of time, that real account will be debited. And credit the real account when that thing is going out of the business. Let's see here. We started the business with cash. We said cash is a real account. What is the rule? Debit what comes in, credit what goes out. Now think, cash is coming in or cash is going out. सोचो एक मिनट, कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट. रियल अकाउंट है, कभी कभार कैश जाएगी, कभी कभार कैश आएगी. यहाँ पे सोचो कैश के साथ क्या हो रहा है? रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट. यस, going out, correct? Going out, coming in. क्या हो रहा है? Ma'am, cash is going out. Going out. Yes. Everyone, same opinion. Cash is going out. बस यही पे तुम अकाउंटिंग अच्छे से सीखोगे. अगर गलती करोगे तो क्या गलती हुआ? कैश इज नॉट गोइंग आउट, कैश इज कमिंग इन. पहले दिन फर्स्ट कंसेप्ट क्या सीखा? ये कौन है?
राइट हैंड साइड कौन नहीं है और ये कौन है? व्हाट इज राइट हैंड साइड? कौन है राइट हैंड साइड? बिजनेस, राइट? ये बिजनेस है और ये कौन है? किसने बिजनेस को पैसे दिए? रमेश ने दिए। अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं हम? रमेश के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं कि रमेश कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहा है, रमेश के घर पे कौन से खर्चे हैं, रमेश किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर से पैसे लेके आ रहा है? आर वी डूइंग एन अकाउंटिंग फॉर रमेश? नो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, वी आर डूइंग एन अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब सोचो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसे दिए रमेश ने, पैसे कहाँ पे आए? बिजनेस में। तो कैश बिजनेस में आ रही है कि बिजनेस से जा रही है? मैम बिजनेस में आ रही है। Right, first concept, that's what it was important to think from a viewpoint of a business. Don't think from a viewpoint of an owner, because these two are different entities. Okay, so business entity says that business is a different entity than a business owner. We are not going to do an accounting for business owner. बिजनेस ओनर के घर के खर्चे नहीं हमें रिकॉर्ड करने हैं, हमें बिजनेस के खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, बिजनेस का इनकम रिकॉर्ड करना है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस से पैसे जा रहे हैं. तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. सो व्हाट द रूल सेज, रियल अकाउंट है, इफ कैश इज कमिंग इन, डेबिट दैट अकाउंट. करेक्ट? डेबिट व्हेन दैट रियल अकाउंट इज कमिंग इन. कभी कभी बाहर भी जाएगी कैश, तो तब हम कैश अकाउंट को क्या देंगे? क्रेडिट दे देंगे. बिजनेस से बाहर जाएगी जब कैश, कोई चीज परचेज करेंगे, बिजनेस से बाहर जाएगी कैश, क्रेडिट दे देंगे कैश को. सो रूल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज हैपनिंग टू दैट अकाउंट इन दैट ट्रांजैक्शन. ऐसा रूल नहीं है कि कैश हमेशा डेबिट ही होगी, कैश रियल अकाउंट है तो हमेशा डेबिट ही होगी, ऐसा रूल नहीं है. अगर कैश रियल अकाउंट है और उस ट्रांजैक्शन में कैश के साथ क्या हो रहा है, कैश क्या बिजनेस में आ रही है या बिजनेस से बाहर जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट डेबिट और क्रेडिट विल बी डिसाइडेड. सो हियर सिंस कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, रमेश पैसे दे रहा है बिजनेस को, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, so we are going to debit this account in this transaction. So हम rule apply करेंगे comes in and we are going to debit the cash account in this transaction. Clear? Any doubt here? No? No ma'am. Okay, let's look at the next transaction again. Sale of the goods to Mr. Amit, rupees 10,000 for cash. What we identified? Mr. Amit, we are selling him the goods, we are giving him the goods and cash account. So goods account जो है ये भी रियल अकाउंट है और कैश अकाउंट जो है ये भी रियल अकाउंट है. क्या एक ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा रियल अकाउंट आ सकते हैं? यस, दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों भी रियल अकाउंट हो सकते हैं, या पर्सनल या नॉमिनल. देयर इज नो रूल एज सच कि डेबिट रियल अकाउंट आया तो नॉमिनल अकाउंट नहीं आ सकता या दो रियल अकाउंट नहीं आ सकते. नो रूल एज सच. That is completely depend upon the transaction. Okay, so now when I'm selling the goods, goods के साथ क्या हो रहा है सोचो. goods हमारा रियल अकाउंट है, goods आ रहे हैं कि जा रहे हैं. think from a business point of view. किसको सेल कर रहे हैं हम? अमित के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं. अमित को गुड्स मिले हैं बट हम अमित के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे. बिजनेस, बिजनेस क्या कह रहा है? गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं गुड्स? थिंक ऑफ दिस. यस, goods are coming in or going out? What is happening? Yes, what is happening to the goods? बोलो बोलो. सेल कर रहे हैं ना हम गुड्स, करेक्ट? Going out. तो गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे गोज आउट. एंड इस केस में जो गुड्स अकाउंट है या सेल ऑफ गुड्स अकाउंट है ये क्या होने वाला है? क्रेडिट. ठीक है, क्लियर? आई विल कम बैक टू दिस अकाउंट वंस अगेन, या बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुड्स अकाउंट को हमने पहले एक प्रीफिक्स लगाया है और ये प्रीफिक्स लगाने की वजह से इसका टाइप चेंज होने वाला है. बट फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड दैट गुड्स इज अ रियल अकाउंट, गुड्स इज गोइंग आउट,
So I will credit the goods account. What is happening to cash here? इस ट्रांजैक्शन में सोचो अभी कैश क्या हो रहा है, अमित को गुड्स दिए, अब कौन किसे कैश दे रहा है? हु इज गिविंग कैश टू हुम? यस, तो जो बिजनेस में कैश आ रही है कि बिजनेस से कैश जा रही है, बिजनेस के ड्रॉअर में कैश आ रही है कि जा रही है? यस पूजा, आई एम नॉट श्योर बट आ रही है. आ रही है. जब आप कोई चीज एज अ बिजनेस आप सेल करोगे तो सामने वाला आपको पैसे देगा ना, राइट? तो बिजनेस में कैश आ रही है, तो कैश इज कमिंग इन. So the rule applied to here to the cash account is coming in. अब मैं आपको पूरा पूरा अभी नहीं बता रही हूँ एक ही ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, हम बस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. जब इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो मैं बताऊंगी. उसी को अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एक रूल के साथ. सो कमिंग इन, तो कमिंग इन का रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट, सॉरी व्हेन नहीं चाहिए, यहाँ पे व्हाट चाहिए. डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जो आ रहा है उसे डेबिट करो. कैश यहाँ पे आ रही है तो मैं कैश को डेबिट करने वाली हूँ. कैश अकाउंट मेरा इस ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Purchased machinery from ABC Company Limited for cash of rupees 25,000. चलो फटाफट आंसर चाहिए अभी मुझे. मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट? यस भाग्यश्री, कमिंग इन और गोइंग आउट? कौन सा रूल देखोगे इसमें से? कमिंग इन और गोइंग आउट? मशीनरी. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. बिजनेस ने मशीनरी को परचेज किया. Business purchased the machinery from ABC. We are doing an accounting for business. Business ने machinery को purchase किया. Yes भाग्यश्री, quickly. बोलो बोलो, डरो मत. इंटरेस्टिंग है उल्टा ये तो. You should be excited. Yes, बोल भाग्यश्री. क्या हो रहा है? मशीनरी कमिंग इन गोइंग आउट? Coming in, ma'am, I'm not confirmed. कमिंग इन. क्यों नहीं कंफर्म? बिजनेस परचेस कर रहा है ना मशीनरी को. तो मशीनरी आएगी कि क्या होगा? मशीनरी बिजनेस में आएगी. प्रोडक्शन करना है तो बिजनेस में मशीनरी लेकर ही आना पड़ेगा. सो इट्स कमिंग इन. यस, इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक. बोलो पर कम्स इन, मशीनरी इज कमिंग इन. सो रूल कौन सा अप्लाई करेंगे सुयोग? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट. डेबिट. सो राइट डाउन हियर डेबिट. ओके, नेक्स्ट. और एक रियल अकाउंट है इसमें तो. अब सोचो कैश. I purchased machinery. I means business. I'm a business. Business purchased the machinery. बिजनेस ने मशीनरी परचेज करने के लिए सामने वाले पार्टी को ड्रॉवर से निकाल के कैश दे दिया. बिजनेस के ड्रॉवर से कैश निकाला और दे दिया. क्या मैम हुआ? कैश गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. So cash goes out. Which rule we are going to apply, Pooja? Which rule? क्रेडिट. Credit. Okay, so we are going to credit the, here we are going to credit the cash account. So in some transaction जहाँ जहाँ पे भी देखो कैश कमिंग इन था, हम कैश अकाउंट को डेबिट देंगे. जहाँ जहाँ पे भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगी उस ट्रांजैक्शन में हम कैश अकाउंट को क्रेडिट देंगे. दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन. एक ही ट्रांजैक्शन नहीं है. ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ. This is fourth transaction. So in fourth transaction, cash is going out. So in that case, हमें कैश को क्रेडिट देना है. ओके, क्लियर? लास्ट वन यहाँ पे देखते. पेड रेंट रुपीज 10,000 बाय कैश. ये सुयोग. कैश अकाउंट भी आइडेंटिफाइड, रेंट अकाउंट भी आइडेंटिफाइड. कैश अकाउंट व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट ना. रियल.
काय झालं आता इथे कॅश कम्स इन गोज आउट, कैश गोस आउट, कॅश गोज आउट, so cash goes out, which rule is applied? क्रेडिट. क्रेडिट. ठीक है, क्लियर. फर्स्ट ट्रांजैक्शन रह गया, परचेज गुड्स ₹5,000 फॉर कैश. अब यहाँ पे गुड्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है. सोचो बट किसके साथ क्या हो रहा है अभी, हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं. बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएंगे, रॉ मटेरियल आएगा, रियल अकाउंट. कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कम्स इन या गोज आउट? Comes in. कम्स इन. गुड्स आर कमिंग इन, तो कम्स इन. अगर जो रियल अकाउंट जो कम्स इन है उसके डेबिट कर रहे हैं, आई विल बी डेबिटिंग टू द गुड्स अकाउंट. But at the same time, I have to pay the cash to the vendor, to the supplier. So the rule applied over here is goes out. Cash is going out. कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, करेक्ट. तो इस केस में हम कैश अकाउंट जो भी लिखेंगे जर्नल एंट्री में उसे हम क्रेडिट करने वाले हैं. Okay? अब अगर मुझे इसका जर्नल एंट्री पास करना है तो विद दिस वन रूल ओनली, अभी भी हमारा क्या रूल देखना बाकी है, पर्सनल अकाउंट का रूल देखना बाकी है और नॉमिनल अकाउंट का रूल देखना बाकी है. बट एक जो भी एक अकाउंट एक ट्रांजैक्शन हमने किया, लेट्स सी इसका जर्नल एंट्री हम कैसे पास कर सकते हैं. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस चार्ट. वहां पे आपने अभी रूल लिख लिए हैं, हैव यू रिटन द रूल्स. अब जो भी इनकम्प्लीट है जब हम सेकेंड रूल देखेंगे तब इसको आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, अभी भी हमारे दो रूल देखना बाकी है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल का रूल देखना बाकी है. रियल समझ में आया सबको, रियल अकाउंट का रूल समझ में आया. आई रिपीटेडली से, इसको इतनी बार पढ़ो, इतनी बार बोलो कि आधी नींद में उठाया तो भी आज आना चाहिए. अकाउंटिंग सीख रहे हो तुम, फर्स्ट डे, डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ गया आज रियल अकाउंट का, राइट. बी हैप्पी एंड एज्यूम योर होम एक्सपेंसेस. घर में ग्रोसरी लेकर आए, ग्रोसरी अकाउंट डेबिट, मम्मी ने कैश दिया ग्रोसरी लेने के लिए, कैश अकाउंट क्रेडिट. करेक्ट, कर सकते हो ना आज के दिन इतना. योर फैमिली विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू डेबिट एंड क्रेडिट. समझ में आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो. इफ यू हैव एन फैमिली विद अ कॉमर्स बैकग्राउंड डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी. सोचो सिर्फ घर में कौन से रियल अकाउंट है. ओके, and when those things come into your house as they goes out of your house, what will be the journal entry that you will pass? Okay, so how to pass in journal entry for this? So ये तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मेट हुआ कि ट्रांजैक्शन को हम पहली बार सीख रहे हैं कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है. बट अकाउंटेंट इस तरीके का नहीं करेगा, बिकॉज अकाउंटेंट को ऑलरेडी रूल्स पता है, उसका दिमाग तो दिन रात यही डेबिट क्रेडिट ही करते रहता है. तो उसको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, फिर वो कम्स इन है, फिर उसे डेबिट करो. नो, ही इज डायरेक्टली गोइंग टू गो टू द जर्नल फॉर्मेट एंड पास द जर्नल एंट्री. ओके, जर्नल एंट्री फॉर्मेट व्हाट यू कैन डू इज, ये आपने एक पेज पे कर लिया, उसके बाजू वाले पेज पे, कनेक्टिंग पेज पे आप इसका जर्नल एंट्री तुरंत ड्रॉ कर लीजिए. ओके, so let's pass in journal entry for only one transaction here, because ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है कि जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट होना चाहिए. सिंस वी हैव ओनली सीन वन रूल, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों कवर हो रहा है, इसलिए मैं इस ट्रांजैक्शन को ले रही हूँ. अदरवाइज बाकी का कंप्लीट नहीं है अभी ट्रांजैक्शन, रूल कंप्लीट नहीं है, so we'll do it afterwards. So you have to make a small format like this. Okay, make this kind of format. एक सेपरेट पेज पे ऐसा एक फॉर्मेट बनाते हैं. ऊपर की मार्जिन थोड़ा सा छोड़ दो. आपका जो नोटबुक का मार्जिन होगा यहाँ पे वो आप डेट कॉलम के लिए यूज कर सकते हो. दिस फॉर्मेट यू कैन मेक इट लाइक एटलीस्ट वन पेज. ओके, एक पेज का फॉर्मेट बना लो. नाउ दिस लेजर फोलियो इज जनरली कॉल्ड एज एन LF. ठीक है, इसका मैंने आपको अभी इम्पोर्टेंस बताया नहीं है क्या है. इसको हम सीखेंगे, थोड़ा देर से सीखेंगे. जस्ट कीप इट ब्लैंक राइट नाउ. यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं लिखने वाले. ये छोटा सा कॉलम होता है जो कि ब्लैंक रहेगा. ठीक, नाउ एक ट्रांजैक्शन हो गया, हमने परचेज किया गुड्स को, एंड जैसी
हमने गुड्स को परचेज किया, अकाउंटेंट को तुरंत बुक्स में एंट्री पास करनी है, इज नॉट गोइंग टू पास दिस एंट्री इन दिस फॉर्मेट। ये तो रूल सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा इस तरीके से, राइट? बट अकाउंटेंट ऑलरेडी नो व्हाट हैज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ही विल डायरेक्टली गो टू द जर्नल एंट्री। अब हम इसके टाइटल में लिखेंगे कि हम ये बुक्स किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो ये किसकी बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, कौन सी कंपनी की होगी, कौन से प्रोप्राइटर की होगी, बिजनेस की होगी, उसका नाम यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। ओके, मान लो कि रमेश की बिजनेस का नाम है इन द बुक्स ऑफ सुपर मार्केट। ओके, इन द बुक्स ऑफ सुपर मार्केट journal entry. अब journal entry can be passed for a specific month. एक महीने की journal entry एक जगह पे, right? उसी के continuation में second month की journal entry. So this is generally given to you for a month. एक month में इतने इतने transaction हुए तो उसका journal entry pass करके बताओ. So this journal entry is passed for 1 month. So I'm going to call it as journal entry for the month of say Jan 2020. कौन से महीने की जर्नल एंट्री हम बता रहे हैं, जैन 2020 मंथ की जर्नल एंट्री हम बता रहे हैं। बिलो दैट यू नीड नॉट राइट यहाँ पे जर्नल, आपने ऊपर टॉप मार्जिन में ऑलरेडी लिख लिया है। सो डेट पर्टिकुलर्स आपको ये पूरा 1 पेज फॉर्मेट बना लो आप। सो रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑल्सो वी विल डू इट हियर, ठीक है। अब देखते हैं पहले ट्रांजैक्शन को जिसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सो वी सेट परचेज गुड्स oblique raw material of rupees 5000 for cash। अब ये ट्रांजैक्शन की डेट है 1st of Jan। ओके, हम जैन मंथ के ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, दिस इज द डेट इज 1st of Jan, ईयर इज 2020। तो सबसे पहले डेट कॉलम में हम डेट मेंशन करेंगे 2020 Jan 1st। डन। नाउ जो अकाउंट डेबिट होता है, जो अकाउंट डेबिट होगा, हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया है परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट। जो अकाउंट डेबिट होता है उसका नाम जर्नल एंट्री में सबसे पहले आता है। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस अकाउंट नेम हियर, परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट। परचेज का P कैपिटल, G का गुड्स का G कैपिटल। सो मेन जो लेजर होता है, इसे अकाउंट जो होता है इसका कैपिटल लेटर लिखा जाता है नाम का, it has to be capital. This is how the practice of writing is. So purchase of goods account। अब जो अकाउंट डेबिट होता है उसके आगे ऐसे थोड़ा सा डॉट डॉट करके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में उसका साइन लिखा जाता है DR। डेबिट का साइन होता है DR। ओके, तो कितने के गुड्स हमने परचेज किए, वी परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज 5000। अब ये जो डेबिट अमाउंट है यहाँ पे हमें रुपीज लिखना है, कितने के गुड्स हमने परचेज किए, जितने के गुड्स परचेज किए होंगे और ये अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगी 5000। कीप द LF कॉलम ब्लैंक राइट नाउ। सो परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट रुपीज 5000। नाउ व्हाट हैज टू बी क्रेडिटेड। अब हर एक एंट्री में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। सो लुक एट हियर, व्हिच अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड, बताओ कौन से अकाउंट को क्रेडिट देना है। यस, कौन से अकाउंट को क्रेडिट देना है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री में जब हम डेबिट रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके नीचे जो अकाउंट क्रेडिट होता है उससे लिखना है, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके पहले थोड़ा सा स्पेस देना है नीचे की लाइन में और फिर 2 लिखना है। ओके, और फिर जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका मैं नाम लिख रही हूँ कैश अकाउंट, एंड इसको कोई भी डॉट डॉट करके क्रेडिट ये वर्ड लिखना नहीं है।
जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके पहले एक प्रीफिक्स लगता है टू, इसको तुरंत पी के नीचे टू को नहीं लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना है और उसके बाद टू ये वर्ड लिखना है, एंड देन जो अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा उसका नाम लिखना है। अब कैश कितने की गई हमारी, वो भी 5000 की गई, तो जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसकी अमाउंट बराबर क्रेडिट कॉलम में आएगी यहाँ पे। डोंट राइट इट इन फ्रंट ऑफ अ डेबिट, राइट इट इन फ्रंट ऑफ द अकाउंट विच हैज गॉट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे कैश मेरा 5000 गया, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ₹5000 इन द क्रेडिट कॉलम। So how to read this? Purchase of goods account debit to cash account. Even don't mention that it is credit. Purchase account debit ₹5000 to cash account 5000. That's it. Journal entry complete हो गई. Okay, easy है? Yes? Easy है? Yes or no? इंटरेस्टिंग है? इजी डिफिकल्ट छोड़ो, इंटरेस्टिंग है क्या? लग रहा है कि नहीं इंटरेस्टिंग? सो आई रिपीट अगेन, ठीक है, एक बार वापस पूरी तरीके से करेंगे इसको। सो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखा, दैट वी सॉ वी हैव परचेज द गुड्स। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से अकाउंट्स इसमें यूज हुए। एक हमने कहा कि परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट है, दूसरा है कैश अकाउंट। फिर हमने सीखा कि इन अकाउंट का टाइप कौन सा है। सो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स देखे, वन इज पर्सनल, वन इज रियल, वन इज नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ द पर्सन, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टैंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। टैंजिबल जो कि दिखाई देते हैं, ओके, जिसको टच कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, will also be called as a real account. Intangible, we cannot see, touch, feel, but they are there. Those are the real accounts. Nominal account divided into 2 parts, expenses and income. Now, जब इस transaction को देखा हमने, we try to identify what kind of accounts they are. So we said goods दिखाई देते हैं, okay, touch कर सकते, feel कर सकते, name of the person नहीं है, इसलिए it becomes a real account. Then we said cash, yes, we can see, touch, feel, cash भी real account है. Now then we saw the golden rules. So we have only seen the real account rule. There is also an nominal account and there is a rule for the personal account. इसका भी डेबिट क्रेडिट का रूल देखेंगे। सबसे पहले रियल अकाउंट का रूल। सो रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है, जो भी आ रहा होगा बिजनेस में, अगर वो रियल अकाउंट है तो उसे डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस से कुछ बाहर जा रहा है जो कि एक रियल अकाउंट है, उसे क्रेडिट कर दो। कमिंग बैक हियर, वी सेड goods in this transaction is a real account but goods are coming into the business. So यहाँ पे हमने इसलिए goods, ये जो purchase of goods account है, इसे डेबिट किया। And cash we said, okay, when we have to buy the goods, we have to pay the cash, correct? For cash का मतलब हमने cash दिया और goods लिए. So cash is going out of the business. Think from a viewpoint of a business, as if we are a business. मैं business हूँ, मैं owner नहीं हूँ business की, मैं खुद एक business हूँ. तो business से cash जा रही है. So going out, so rule applied is credit that account. Now accountant is not going to write it this way. कि पहले अकाउंट का टाइप, फिर रूल, फिर डेबिट एंड क्रेडिट, नो। व्हाट ही इज गोइंग टू डू, फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसको कोई ट्रांजैक्शन लिख के भी नहीं देने वाला है। जैसे ही उसको पता चला कि आज हमने कुछ तो परचेज किया है, वो परचेज का बिल मांगेगा, करेक्ट? परचेज का बिल देखेगा एंड ही विल हैव टू डायरेक्टली पास द जर्नल एंट्री बिकॉज ही ऑलरेडी नो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेरी क्विकली. सो ही इज गोइंग टू पास इन जर्नल एंट्री। जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसे पहले लिखना है, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखना है, किस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ। जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसे पहले लिखना है। सो परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, डेबिट लिखने के टाइम पे यहाँ पे थोड़े से डॉट देखिए, आगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स कॉलम में डेबिट लिख लो। जितने के गुड्स परचेज किए होंगे उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखो। सेकेंडली,
जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके सामने कभी भी क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा, सिंस कैश वॉज गोइंग आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बट जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है उसके पहले वर्ड यूज किया जाता है टू, और ये वर्ड लिखने से पहले डेबिट के तुरंत नीचे नहीं लिखना है, ओके इसको थोड़ा सा स्पेस देके फिर टू वर्ड लिखना है। सो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में अमाउंट इज 5000। हाउ टू रीड दिस? परचेज अकाउंट डेबिट ₹5000 टू कैश अकाउंट 5000। कहीं पे भी मैंने क्रेडिट ये वर्ड यूज किया नहीं, टू वर्ड लग गया, इसका मतलब ही वो क्रेडिट हो गया है, ओके। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा, अब अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन तो कहीं लिख के नहीं ले रहा है, तो वो शायद भूल जाएगा कि किससे गुड्स परचेज किए थे, क्या कुछ डिस्काउंट मिला था, क्या कुछ हुआ था, राइट। सो बिलो द एंट्री विल हैव टू मेंशन something called as a narration. A detail about that entry is called as a narration. How to write that? Narration always start with the word being. Being का मतलब है जो ट्रांजैक्शन पास्ट में हो चुका है उसके बारे में मैं लिख रही हूँ। Being purchase goods from, जो भी XYZ कंपनी का अगर मुझे नाम लिखना है कि मैंने किससे गुड्स परचेज किए हैं, being purchase goods from say XYZ company for cash, बस। अगर कुछ डिस्काउंट होगा, इनवॉइस नंबर होगा, वो भी आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो। नाउअडेज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इनवॉइस नंबर नरेशन में नहीं डालते, कहीं पे डालने के लिए उसको जगह दी गई है स्पेसिफिक, वाउचर नंबर करके वहां पे डाल सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। नाउ नरेशन इज कंपल्सरी टू एनी जर्नल एंट्री, मेड बी कंप्यूटराइज सिस्टम, मेड बी एनी सिस्टम, नरेशन इज मैंडेटरी, ओके। तो मैनुअल अकाउंटिंग जब हाथ से बुक लिखे जाते थे पेन एंड पेपर लेके, तो भी ऐसी जर्नल एंट्री पास होती थी। अभी भी कंप्यूटराइज सिस्टम में ऐसे ही जर्नल एंट्री पास होती है। जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसे पहले लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसे बाद में लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंप्यूटराइज सिस्टम में आप कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट उल्टा पल्टा कर सकते हो आप, बट मैनुअल अकाउंटिंग में डेबिट अकाउंट पहले लिखा जाएगा और क्रेडिट अकाउंट बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। यस, अंडरस्टूड टिल नाउ? एनी क्वेरी यू हैव? Yeah, just today revise one rule of accounting. Debit what comes in, credit what goes out, और घर की चीजों को आइडेंटिफाई करो एज इफ दे आर योर बिजनेस थिंग्स। घर में क्या आ रहा है डेबिट कर दो, घर से क्या जा रहा है क्रेडिट कर दो, जो दिखाई देता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज विजिबल, राइट। नाउ दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ रियल अकाउंट को सोचो, फाइन, ठीक है। ओके, सो यस वी स्टॉप इट हियर फॉर द डे देन।